So this lecture is on the construction of the dual from the primal. There are certain steps, specific steps that you need to follow to construct your dual problem from your primal problem. So let's say we have an LPP that says maximize Z equal to 2x1 plus 3x2, and the constraints are x1 plus 2x2 less than 6, and the next constraint is say 2x1 plus x2 is less than 13. The non-negativity constraints are x1 is non-negative and x2 is non-negative. So this is your primal. हमको इस primal से बनाना है dual. So the first rule is, अगर primal maximization का होता है तो dual इसका opposite हो जाएगा. That is, it is a minimization dual. This is minimization. Next, जितने constraints आपके primal में हैं उतने variables dual में होंगे. जैसे primal में this is the first constraint and this is the second constraint. So there are two constraints in your primal. This implies there would be two variables in your dual. तो let's say पहला variable जो dual में हम लिखेंगे, let's say that is y1, और दूसरा variable is say y2. So what is the correspondence? The number of constraints in the primal is equal to the number of variables in the dual. And the constraints, ये जो constraints होते हैं और जो variables होते हैं dual में, इनका correspondence होता है. कैसे होता है वो देखते हैं. But if you have two constraints in the primal, there will be two variables in your dual. Now what is the objective? The objective is the multiplication of the right hand side in your primal with the variables that you have. यानी कि 6 into y1, 13 into y2. So 6 into y1 plus 13 into y2. So this is the objective. Now what is the first constraint of your dual? For the first constraint, look at the coefficient of x1 in your LPP, primal LPP. The coefficient of x1 is 1 and the coefficient of x1 is 2 in the second constraint. So how do you write the first constraint? You write 1 into y1 plus 2 into y2. So you write 1 into y1 plus 2 into y2. Now what is on the right hand side of this constraint in the dual? See the coefficient for x1. What is that? 2. So write 2. बीच में क्या साइन आएगा, विल लीव इट एज इट इज, अभी के लिए ब्लैंक छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं कि कैसे वो साइन डिसाइड होता है. Now let's proceed to write the second constraint. Second constraint में look at the coefficient of x2. ये पहली constraint में है और ये दूसरी constraint में coefficient x2 का 1 है. So you do 2 into y1, 1 into y2. So that gives you 2 into y1 plus 1 into y2. Right hand side पे क्या आएगा? See the coefficient of x2. That is 3. So write 3. बीच में क्या साइन आएगा? We'll leave it. अभी छोड़ते हैं. Now y1 एक वेरिएबल है और एक आपका वेरिएबल y2 है. सो हमने एलपीपी तो लिख दी है, लेकिन अभी क्या चीज नहीं लिखा है हमने, ये बीच के जो सिंबल्स हैं यहाँ पे, इनइक्वालिटी का साइन, यहाँ इसका साइन, इसका साइन और इसका साइन नहीं लिखा. नाउ व्हेनेवर यू हैव एन एलपीपी, थिंक ऑफ कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर है तुम्हारे सामने, सो द इनइक्वालिटी दैट यू विश टू सी इज
in the constraint are all less than equal to. This is a favorable case for an LPP which is of the maximization sense. अगर problem minimization की है, so what you wish to see is inequalities of only this type. These are the only favorable cases that you want when you are trying to solve a minimization. Minimization के लिए what you think यार काश greater than equal to inequality होती, because that inequality is termed as a favorable inequality for a minimization problem. अगर मैक्स कर रहे होते प्रॉब्लम तो इनइक्वालिटी जो फेवर में है वो कौन सी है, लेस देन इक्वल टू. अब बात आती है वेरिएबल्स की. तो वेरिएबल्स जो एलपीपी में फेवरेबल होते हैं आर ऑल नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स आर ऑलवेज इन फेवर. दिस बॉक्स टेल्स यू कि कौन से एलपीपी में क्या चीज फेवरेबल है. अगर मैक्स प्रॉब्लम है तो लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी फेवर में है. अगर मिन प्रॉब्लम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू फेवर में इनइक्वालिटी है. और वेरिएबल्स कौन से फेवर में है, ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू. ये वेरिएबल्स के लिए है. अब डिसाइड कैसे करना है. अगर आपका प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का है, जो कि इस केस में है, इफ यू सी द फर्स्ट कंस्ट्रेंट को देख के पता चलेगा फर्स्ट डुअल वेरिएबल के नेचर के बारे में. प्रॉब्लम प्राइमल में मैक्स है, इनइक्वालिटी आपकी फेवर में है, दैट मींस जो पहला वेरिएबल होगा आपका डुअल में दैट वुड बी इन योर फेवर. और फेवर में कौन सा होता है वेरिएबल, नॉन नेगेटिव. यहां पे लिखा है. नाउ सी दी सेकंड इनइक्वालिटी. द सेकंड इनइक्वालिटी इन योर प्राइमल इज अ लेस देन इक्वल टू. प्राइमल आपका मैक्सिमाइजेशन का है, इनइक्वालिटी ये आपके फेवर में है, दैट मींस द सेकंड बेसिक वेरिएबल वुड बी इन योर फेवर. तो कौन सा वेरिएबल हमेशा ही फेवर में होता है, जो वेरिएबल नॉन नेगेटिव होता है. तो हमने वेरिएबल्स का नेचर डिसाइड कर लिया एलपीपी के, प्राइमल के, कंस्ट्रेंट के सिंबल्स को देख के. अब आते हैं इन कंस्ट्रेंट्स के लिए क्या नेचर आने वाला है. नाउ सी द फर्स्ट वेरिएबल इन योर प्रॉब्लम. एलपीपी का जो प्राइमल दिया है आपका, उसका जो फर्स्ट वेरिएबल है उसमें क्या है, क्या ये वेरिएबल फेवर में होता है. एवरी नॉन नेगेटिव वेरिएबल इज इन फेवर. यहां पे इफ द फर्स्ट वेरिएबल इन योर प्राइमल इज इन फेवर, दैट इंप्लाइज आपके डुअल में जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगी वो फेवर में होगी. हमारा डुअल मिनिमाइजेशन का है, और मिनिमाइजेशन के लिए क्या चीज फेवर में होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू. दैट मींस जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट आएगी दैट वुड बी अ ग्रेटर देन इक्वल टू. Now, if you want to decide the nature of the second constraint in your dual, look at the second variable in your primal. This is our second variable in the primal. क्या ये variable favor में है? This is in favor. This is the second constraint. This is the second variable. That means the second constraint of your dual would be in your favor. और minimization के लिए कौन favor में होता है? Greater than equal to. So write a greater than equal to. So this is the dual of the primal that you are given. Let's take one more example. एग्जाम्पल में इसको कॉपी करते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं. जैसे ये प्राइमल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बट इसमें कुछ साइंस चेंज कर देते हैं. लेट्स से इसका साइन, इसका रहने देते हैं, और इसको भी, नेचर को भी चेंज कर देते हैं. इसको बना देते हैं मिन, x1 को कर देते हैं नॉन पॉजिटिव, इसको कर देते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसको कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू. अब लिखते हैं सारे वेरिएबल्स और अपना डुअल लिखते हैं. तो डुअल यहाँ पे आएगा. डुअल का सेंस, सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है कि प्राइमल का क्या सेंस है. सेंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज मिनिमाइजेशन इन द प्राइमल. दैट मींस डुअल में जाके वो मैक्स बन जाएगा. कितने वेरिएबल्स होंगे डुअल में, वेरिएबल्स होंगे जितने आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं प्राइमल में. तो पहली कंस्ट्रेंट के लिए y1 लिख दिया, दूसरी के लिए y2 लिख दिया. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज 6 into y1 plus 13 into y2. 6 into y1 plus 13 into y2, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव. लेट्स से इसको बोल दिया w. नाउ राइट द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इन योर डुअल. कैसे लिखेंगे फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सी द कोएफिशिएंट ऑफ x1 इन योर प्राइमल, 1 and 2. सो 1 into y1 plus 2 into y2. 1 into y1 plus 2 into y2. राइट हैंड साइड में सी द कोएफिशिएंट ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे लिख दिया 2.
सेकेंड कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे? सी द कोएफिशिएंट ऑफ x2, 2 और अगली वाली कंस्ट्रेंट में 1, सो 2 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2, सो 2 इंटू y1 प्लस y2. राइट हैंड साइड में क्या आएगा? सी द कोएफिशिएंट ऑफ x2 इन द ऑब्जेक्टिव, दैट इज 3, सो राइट 3. खत्म हो गया. अभी यहाँ पे y1 का नेचर डिसाइड करना है और y2 का नेचर डिसाइड करना है. नाउ सी द फर्स्ट कंस्ट्रेंट ऑफ योर प्राइमल. लेस देन इक्वल टू साइन है प्राइमल में, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है. तो क्या मिनिमाइजेशन के लिए लेस देन इक्वल टू फेवर में होता है? ये नहीं होता फेवर में. दैट मींस जो ये वेरिएबल आएगा दिस वुड नॉट बी इन फेवर, और वेरिएबल बीइंग नॉट बीइंग इन फेवर इज अ लेस देन इक्वल टू. सी द सेकंड वेरिएबल. मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, सेकंड कंस्ट्रेंट दिखती है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये होती है फेवर में मिनिमाइजेशन में. दैट मींस द सेकंड वेरिएबल वुड बी इन फेवर. एंड व्हाट इज इन फेवर? फेवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू. सिंबल डिसाइड कर लिए, नेचर डिसाइड कर लिया वेरिएबल्स का डुअल का. नाउ लुक फॉर द कंस्ट्रेंट का सिंबल क्या आने वाला है. तो हमें अभी ये फिल करना है और ये फिल करना है. ये कैसे डिसाइड होगा? सी द फर्स्ट वेरिएबल इन योर प्राइमल. क्या ये वेरिएबल कभी फेवर में होता है? नॉन पॉजिटिव इज नॉट इन फेवर एनी टाइम, चाहे वो मैक्स प्रॉब्लम हो चाहे वो मिन प्रॉब्लम हो. द वेरिएबल्स दैट यू वांट आर ऑफ दिस टाइप ऑलवेज, चाहे वो मैक्स हो चाहे मिन हो. बट इफ यू सी, पहला वेरिएबल प्राइमल का फेवर में नहीं है. दिस इंप्लाइज कि जो ये पहली कंस्ट्रेंट होगी ये फेवर में नहीं होने वाली. इसका मतलब है कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है डुअल, तो फेवर में क्या नहीं है? ये फेवर में नहीं है. क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के लिए किसको बोला है हमने फेवर में? लेस देन इक्वल टू को. तो फेवर में क्या नहीं हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू. नाउ सी द सेकंड वेरिएबल. क्या सेकंड वेरिएबल नॉन नेगेटिव है? ये फेवर में होता है. इसका मतलब है कि जो सेकंड कंस्ट्रेंट होगी वो आपके फेवर में होगी. मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या फेवर में होता है? अ लेस देन इक्वल टू. तो ये बना दिया हमने डुअल. दिस इज योर डुअल. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. थोड़ा बड़ा लेते हैं. लेट्स से प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की. मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3x3 एंड कंस्ट्रेंट्स आर कि माइनस x1 प्लस x2 प्लस 4 टाइम्स x3 is greater than equal to 7. 2x2 minus x3 is less than equal to 9. x1 plus x2 is equal to 10. x1 is non-negative, x2 is non-positive, and x3 is unrestricted in sign. Now how do you proceed? Dual बनाना है. सबसे पहले the simplest is to identify the nature of your dual. If the primal is a maximization, the dual is a minimization. Now identify the number of variables that you will have in your dual. जितनी constraints उतने variables dual के. So let's say the first one के लिए y1, अगले के लिए y2, अगले के लिए y3. Now what is the objective? The objective is 7y1. और let's say यहाँ पे एक नेगेटिव भी कर देते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको नेगेटिव ना करके अपन इसको कर देते हैं नेगेटिव. लेट्स से ये होता, तब भी वही काम करना है. 7y1 minus 9y2 plus 10y3. This is your objective. Now write the constraints. Constraint लिखते हैं और थोड़ा ध्यान से लिखते हैं इस बार. If you want to write the first constraint, what do you look for? You look for the coefficient of the first variable in your primal. x1 का coefficient -1 into y1. In the second constraint, you do not see the coefficient of x1 तो है ही नहीं, but if you see यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0 into x1. So there is a coefficient of 0. So 0 into y2. अगले के लिए 1 into y3. So what is the first constraint? It is minus of y1 plus 0 times y2 plus y3. On the right hand side क्या आएगा? राइट हैंड साइड पे आता है x1 का ही कोएफिशिएंट, बट यहां पर वो किसके इक्वल है? 0 टाइम्स x1 है यहां पर लिखा हुआ. तो क्या आएगा राइट हैंड साइड में? इट इज अ 0. नाउ डू दैट फॉर द सेकंड कंस्ट्रेंट. सेकंड कंस्ट्रेंट में किसके कोएफिशिएंट देखने? सी द कोएफिशिएंट ऑफ x2. 1 into y1
plus 2 into y2 plus 1 into y3. So what is the constraint? y1 plus 2 y2 plus y3. राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x2. तो कितना है वो? 2. सो राइट दिस 2. व्हाट इज द लास्ट कंस्ट्रेंट? लास्ट कंस्ट्रेंट के लिए किसके कोएफिशिएंट देखने हैं? x3 का. ये है x3 का पहला कोएफिशिएंट 4. दिस इज 4 इंटू y1 माइनस 1 इंटू y2. क्या x3 आपको दिखता है लास्ट कंस्ट्रेंट में? इट इज एक्चुअली रिटन 0 टाइम्स x3. तो क्या बना कोएफिशिएंट इसका? 0 इंटू y3. सो हाउ डू यू राइट? 4 इंटू y1 माइनस y2 प्लस 0 इंटू y3. राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x3 इन दी ऑब्जेक्टिव, दैट इज इक्वल टू 3. सो राइट 3. वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? y1 एक वेरिएबल है, y2 एक वेरिएबल है, y3 एक वेरिएबल है. अब डिसाइड करते हैं नेचर. नाउ सी द फर्स्ट इनइक्वालिटी और द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इन योर प्राइमल. मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. इनइक्वालिटी का सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू है, जो कि फेवर में नहीं होता मैक्स के लिए. दिस इंप्लाइज कि जो वेरिएबल y1 है ये आपके फेवर में नहीं होगा. फेवर में क्या नहीं होता है? नॉन पॉजिटिव होना. नाउ सी द सेकंड कंस्ट्रेंट इन योर प्राइमल. इट इज लेस देन इक्वल टू. यू हैव अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. दैट मीन्स जो y2 होगा वो आपके फेवर में होगा. एंड व्हाट इज इन फेवर? बीइंग अ नॉन नेगेटिव वेरिएबल. नाउ सी द थर्ड केस. दिस इज एन इक्वल टू. तो ना तो ये फेवर में है ना तो ये अगेंस्ट है. इसका मतलब है कि जो वेरिएबल y3 होगा वो ना तो फेवर में होगा ना तो अगेंस्ट होगा. यानी कि ना तो वो नॉन नेगेटिव आप बोल सकते हो ना तो आप नॉन पॉजिटिव बोल सकते हो. तो क्या बोल दो इसको? y3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन. नाउ वी डिसाइड द नेचर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स. यहां पर क्या आएगा? यहां पर और यहां पर. इन तीनों को देखने के लिए क्या देखना है? वेरिएबल्स का नेचर आपके प्राइमल का. नाउ लुक एट द फर्स्ट वेरिएबल. क्या x1 का नॉन नेगेटिव होना फेवर में होता है? हाँ होता है. इसका मतलब है कि जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट आएगी आपके प्राइमल में वो आपके फेवर में जाएगी. ये है आपका डुअल. मिनिमाइजेशन का पहली कंस्ट्रेंट फेवर में लिखनी है. इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रेंट होने वाली है ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज फॉर अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ग्रेटर देन इक्वल टू इज इन फेवर. नाउ लुक एट द सेकेंड वेरिएबल इन योर प्राइमल. क्या नॉन पॉजिटिव होना फेवर में होता है? नहीं होता. इसका मतलब है कि जो दूसरी कंस्ट्रेंट है मिनिमाइजेशन के लिए वो आपके फेवर में नहीं होगी. दैट इज वाई लेस देन इक्वल टू. नाउ सी द थर्ड वेरिएबल इन योर प्राइमल. x3 बिलोंग्स टू r. तो ना तो x3 फेवर में है ना तो अगेंस्ट में है. इसका मतलब है कि जो थर्ड इनइक्वालिटी आएगी आपके डुअल में दैट वुड एक्चुअली बी एन इक्वेशन. सो दिस इज हाउ यू मेक योर डुअल. दिस इज द डुअल. मिन के साथ ये आपका डुअल है. ओके. सो दिस इज हाउ यू फॉर्मुलेट. सो दिस वाज हाउ यू मेक द डुअल. सो दैट्स इट.